Never forget to subscribe, like and share. Hello everyone, this is Deepika. Welcome back in our class. I got many comparison and many requests about the language. So today we will use English language. Now, in the previous video we have already explained you the numbers in which you have understood how to find the numbers. Now today we are doing introduction and properties of rational number, which is first chapter of mathematics of class 8th. Okay, today we will learn about these topics. First is rational number, second is properties of rational number, in which closure property, commutative properties and associative property, and next is distributive property. Okay, and next topic is representation of rational number on number line, and next and last is rational number between two rational numbers. So I thought you know very well what is rational number. That is any number that can be expressed in the form of p by q, where p and q both are integers and q not equal to 0 is called rational number. Any number that can be expressed in the form of p by q, where p and q both are integers and q not equal to 0. If we take q equals 0, then answer will be undefined. Okay, if we take 2 by 0, then answer will be undefined. So q not equal to 0 in the rational numbers. Okay, so next is properties of rational number, in which first property is closure property. In this, nature of left hand side is equal to nature of right hand side. Okay, I'm talking about nature, I'm not talking about number of left hand side and right hand side. ओके, इट मीन्स हमें ये होता है क्लोजर प्रॉपर्टी में कि क्या रैशनल नंबर्स को ऐड करने पर रैशनल नंबर ही हमें मिलेगा. सो लेट्स ट्राई ऑन एडिशन फॉर्म. ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी फर्स्ट इन एडिशन फॉर्म. सो इफ इन एडिशन फॉर्म, इफ a by b plus c by d, so we get what? Closure property. Okay, now in addition form, a by b plus c by d, then answer will be what? Rational number or anything else. So we can check a and b is rational number and c and d is also rational number. So a and b की ये फ्रैक्शन की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी इंटीजर रख सकते हैं विच इज़ रैशनल नंबर. सो 2 by 3 और 4 by 3. Okay, now what I will get? 4 to 6, both denominator is same, so 4 to 6 by 3. Okay, a by b and c by d both are rational numbers, so 2 by 3 and 4 by 3 is also rational numbers, and we will get 6 by 3 as it's also rational number. So we can say addition में closure property applicable है. ओके, बिकॉज इधर भी रैशनल नंबर, नेचर ऑफ दिस एंड नेचर ऑफ दिस इज इक्वल. सो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन में एप्लीकेबल है. नाउ लेट अस चेक कि सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल है या नहीं है. सब्ट्रैक्शन में देखना है कि एप्लीकेबल है या नहीं है. सो ए बाई बी की जगह हम रख सकते हैं 3 by 2 minus 1 by 2. Both are rational numbers, and 3 minus 1 is equal to 2 by 2, and this is rational number, this is also rational number, this is also rational. So subtraction में closure property applicable है, इसमें भी applicable है. closure property जो है addition में भी applicable है, closure property subtraction में भी applicable है. Now next is multiplication. So let us check on multiplication. If we take 3 by 2 multiply by 3 by 2 multiply by 4 by 3.
Okay, we'll get 3 4 ja 12 and 3 2 ja 6. Both are rational number. This is rational number, this is also rational number, this is rational number. So multiplication में भी closure property applicable है. Okay, now next is division. So we take a by b divide by c by d. Okay, so what will we get? So if we take 3 by 4 in the place of a by b and divide by 2 by 3, so now we will get answer will be 3 3 are 9, 4 2 are 8. Okay, we will get this answer. So 3 by 4 is rational number, 2 by 3 is also rational number, 9 by 8 is also rational number. So division में भी closure property applicable है. Okay, so you got it that addition, subtraction, multiplication and division इन सब में closure property applicable है. Okay, so this is all about closure property. Now next is commutative property. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोथ था ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, बस इनमें ये होता है कि ये 2 नंबर्स पे चेक किए जाते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो 3 नंबर्स पे चेक किए जाते हैं. सो हमने पढ़ा होगा इन प्रीवियस क्लासेस में, दैट इज क्या होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में होता है ये कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए. मतलब नंबर्स वही रहते हैं, बस उनको एडिशन करने या जो कुछ भी हम फॉलो कर रहे हैं उनमें उनको इंटरचेंज कर दिया जाता है. ए की जगह बी को रख देते हैं, बी की जगह ए को रख देते हैं. ओके, सो यही सेम प्रोसेस हमें रैशनल नंबर्स के साथ करना है. तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किस पे फॉलो करनी है हमें देखना है, फॉलो हो रही है कि नहीं, किस पे, एडिशन पे. ओके, सो एडिशन पे हमें देखना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को. So a by b plus c by d is equal to c by d plus a by b. मीन्स नंबर्स वही रहेंगे इक्वल की दूसरी साइड, बट हमें नंबर्स को इंटरचेंज कर देना है. प्लेस जो भी रहेंगे उनको इंटरचेंज कर देना है. जैसे a बाई बी प्लस सी बाई डी, तो इक्वल के दूसरे साइड आई मीन राइट हैंड साइड c बाई डी एंड प्लस सेम नंबर, सेम फ्रैक्शन. ओके, सो लेट्स चेक कि एप्लीकेबल है इस पे कि नहीं है. इफ़ a के प्लेस पे हम कुछ भी मान लेते हैं, यानी a बाई बी की प्लेस पे हम कोई भी फ्रैक्शन या यू कैन से रैशनल नंबर रख सकते हैं. सो इफ़ वी टेक 3 बाई 2 प्लस c बाई डी के प्लेस पे कुछ भी रख सकते हैं, जैसे 2 बाई 1. सो इधर भी c बाई डी की प्लेस पे वही फ्रैक्शन रखेंगे जो इधर रखे थे, यानी 2 बाई 1 प्लस a बाई बी इधर क्या था लेफ्ट साइड में 3 बाई 2. सो राइट साइड में भी क्या होगा 3 बाई 2. देन आंसर हम चेक करेंगे कि क्या बोथ था सेम आर, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इधर भी नहीं है. सो हमें सेम करना पड़ेगा पहले. सो आपने पहले क्लासेस में पढ़े होंगे, सो ईजिली आप चेंज कर सकते हैं इसको, आई मीन सेम कर सकते हैं. सो आंसर इज दिस 7 बाई 2 एंड 7 बाई 2. बोथ आर सेम, आई मीन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों सेम था, सेम. ओके, आई मीन बोथ साइड सेम है. ओके, नाउ हम कह सकते हैं कि एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है एप्लीकेबल है, बिकॉज बोथ नंबर एंड बोथ साइड्स आर सेम. नाउ नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन में हम चेक करते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है या नहीं कर रही. सो इफ वी टेक a by b minus c by d and c by d minus a by b. Let's check. a by b and c by d की जगह हम कुछ भी पुट अप कर सकते हैं, कोई भी रैशनल नंबर पुट करके हम चेक कर सकते हैं. सो हमने ये पुट किया, अब आप इससे आंसर निकाल सकते हो.
एंड आपको पता चल रहा होगा कि इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है, सो फर्स्टली हमें डिनोमिनेटर सेम करना होगा, उसके बाद हम माइनस करेंगे। सो हमारा आंसर ये आया, आई मीन 1/6, this side is 1/6 and this side -1/6, so both are not same। 1/6 इधर पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव फ्रैक्शन है एंड राइट हैंड साइड में निगेटिव फ्रैक्शन है, और कह सकते हैं कि निगेटिव रैशनल नंबर है, इधर पॉजिटिव रैशनल नंबर है, बोथ आर नॉट सेम। ओके, सिंपली हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न में करके चेक कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में हम चेक करते हैं, इस पे लेंगे a/b मल्टीप्लाई c/d। सो मैं चेक करना है कि बोथ आर इक्वल और नॉट, सो c/d मल्टीप्लाई a/b। okay, can put any rational number in the place of a/b and the c/d। so we put a/b 2/3 multiply 3/4, okay, 2/3, answer will be 3 2s are 6 and 4 3s are 12, 3 2s are 6, 4 2s are 12, both are same, okay, 6/12 this side and this side 6/12, so we can easily say commutative property is applicable on multiplication। okay, now next is on division, so a/b, now let's check commutative property in division। okay, so a/b divided by c/d is equal to c/d divided by a/b। okay, now we can put any rational number on the place of a/b and c/d, so answer will be this। okay, so easily say in division commutative property is not applicable because left hand side is not equal to because associative property। students, in previous classes you have already learned about this, that is associative property में होता क्या है। देखिए 3 नंबर्स लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं, वही 3 नंबर्स राइट हैंड साइड में होते हैं। ओके, एंड 3 नंबर्स में कोई भी 2 नंबर के पेयर को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड किया जाता है और उनकी तरह सेम राइट हैंड साइड में नहीं ऐड किया जाता, यानी जो पेयर को हमने लिया है लेफ्ट हैंड साइड में उन पेयर को राइट हैंड साइड में न लेकर के किसी और पेयर को लेते हैं और उन्हें ऐड करते हैं। फिर आंसर्स हम चेक करते हैं कि दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा होता है, इक्वल दोनों साइड के आंसर आ रहे होते हैं, तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन फॉर्म में होती है। सेम वही प्रोसेस हमें चेक करना है ऑन रैशनल नंबर्स पे। ओके, सो लुक एट दिस फ्रेंड्स, हमने 3 रैशनल नंबर्स लिए हैं लेफ्ट हैंड साइड में, वही सेम रैशनल नंबर हमने राइट हैंड साइड में लिया है, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड के किसी 2 पेयर को हमने ऐड किया है, यानी ब्रैकेट में कर दिया है, और उनको छोड़ करके दूसरे साइड में किसी और पेयर को हमने ऐड कर लिया है, ब्रैकेट में कर लिया है। अब इन्हीं के प्लेस पे हम किसी भी रैशनल नंबर को रख सकते हैं ना, रख करके हम चेक कर सकते हैं कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी उनमें एप्लीकेबल है या नहीं है। हमारी है एडिशन फॉर्म की। ओके, सो हमने इनकी प्लेस पे ये नंबर्स लिए हैं, आई मीन ये रैशनल नंबर्स लिए हैं। नाउ हमें कैलकुलेट अप करना है कि इक्वल है या नहीं है। नाउ लेट अस चेक, आंसर विल बी दिस एंड बोथ आर सेम, सो you can easily say in addition में associative property applicable है। okay, now let's check on subtraction। वही प्रोसेस हम करेंगे जो हमने एडिशन में किया है। किसको चेक करने के लिए? ये चेक करने के लिए कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है या नहीं, किसमें? सब्ट्रैक्शन में। ओके, नाउ सो हमने ये फ्रैक्शंस लिए हैं और इनकी जगह कोई भी नंबर्स रख सकते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में, मतलब इनमें कोई भी हम रैशनल नंबर रख सकते हैं। नाउ रैशनल नंबर रखने के बाद ही हम चेक करेंगे कि इस सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल है या नहीं। सो लुक एट दिस, हमने ये रैशनल नंबर रखे हैं इनकी प्लेस पे। नाउ लेट्स चेक
answer will be this, which is not equal. Okay, so both sides are not equal, so you can easily say in subtraction associative property is not applicable. About associative property, now come on the next property, which is distributive property. Okay, which is most important. प्रॉपर्टी होती क्या है, जिसमें कि क्या होती है, फर्स्टली आप पहले ये जानो क्या होती है. जैसे 2 ब्रैकेट x प्लस 4. ओके, ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. मीन्स एक कॉमन नंबर साइड में होता है एंड ब्रैकेट में 2 नंबर्स होते हैं. ओके, अगर इनको सॉल्व करना है तो कैसे होगा, इस कॉमन नंबर से यानी ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है उससे ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, देन इस नंबर से ब्रैकेट के अंदर वाले सेकेंड नंबर को मल्टीप्लाई करोगे. ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव. यानी 2, ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 4 2 जा 8. ओके, ये होती है. मीन्स ये मल्टीप्लाई करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय x एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 4. सो आंसर विल बी दिस. ओके, मीन्स जो ये 2 है दोनों में कॉमन होंगे, वो भी मल्टीप्लाई करके, इसलिए ये आंसर आया. ओके, इसी तरह सेम हम रैशनल नंबर के साथ फॉलो करेंगे. सेम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें चेक करनी है एडिशन फॉर्म में एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्म में. सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने ये लिया, ऐसे रैशनल नंबर लिए a बाई बी ब्रैकेट में c बाई डी प्लस e बाई एफ ब्रैकेट क्लोज. तो हम सॉल्व कैसे करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव में, कैसे बताया, जो ब्रैकेट के बाहर नंबर है उसके अंदर से फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई, वैसे ही उसी नंबर को ब्रैकेट के नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. a बाई बी जो है वो बोथ रैशनल नंबर्स में कॉमन है. दैट्स वाई इसको कॉमन ले लिया गया है, बाहर ले लिया है. बिकॉज आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो c बाई डी है, इससे मल्टीप्लाई किया a बाई बी को, प्लस a बाई बी को मल्टीप्लाई किया a बाई एफ, दोनों में a बाई कॉमन है ना. सो इस वजह से हम कॉमन ले लेते हैं, इसको ब्रैकेट के बाहर कर लेते हैं और इस पे हम कोई नंबर को लेकर के ट्राई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं. सो आंसर विल बी दिस. सो student, we can easily say this is applicable on the addition form. So distributive property is applicable on addition form. And students, look at this, अगर यहाँ पे प्लस है, इसकी जगह अगर माइनस करते हैं, सेम यही प्रोसेस होगा. एंड माइनस करते हैं तो आंसर विल बी सेम. बस थोड़ा सा फ़र्क में भी ये होगा कि इधर माइनस है तो इधर भी माइनस हो सकते हैं, लेकिन आंसर सेम होगा. यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो माइनस में भी एप्लीकेबल होती है. ओके, सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज एडिटिव इनवर्स. ओके, एडिटिव इनवर्स में होता क्या है, किसी भी रैशनल नंबर का फंक्शन चेंज कर देते हैं. इफ़ वो पॉजिटिव में है तो हम निगेटिव में कर देते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ़ b बाई डी है, अगर क्वेश्चन में है कि एडिटिव इनवर्स बताइए, ओके, और फाइंड द एडिटिव इनवर्स, सो आंसर क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव में है b बाई डी, सो हम इसे नेगेटिव में कर देंगे, माइनस b बाई डी. ओके, ये हो गया. अगर दिया हुआ है 3/4 लिखा है, फाइंड द नेगेटिव इनवर्स, दिया है अगर फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ 3/4, तो आंसर क्या होगा, -3/4. यानी जो भी फंक्शन होंगे उनको चेंज कर देते हैं, जो भी फंक्शन इधर दिया उसको चेंज कर देंगे, अपोजिट कर देंगे. क्या है नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. यानी जो भी फ्रैक्शन दिया होता है उसका उल्टा कर देते हैं. न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर देते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कर देते हैं. इफ़ वी गेट 3/4 and question is find the multiplicative inverse of 3/4, then answer will be 4/3. ओके, इसको जो भी दिया, जो भी रैशनल नंबर होता है उनको उल्टा कर देते हैं, यानी रिवर्स कर देते हैं उनको. और यू कैन ईजली से
3/4 का रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी जो भी रैशनल नंबर दिया होगा उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, वो होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज नंबर लाइन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। जैसे ही फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं वैसे ही वो रैशनल नंबर्स में चेंज हो जाते हैं। इफ़ वी ड्रॉ अ लाइन, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं जिसमें बीच में और सेंटर में ज़ीरो होता है और ज़ीरो के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ज़ीरो के लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, जो कि इक्वल पहले हम नंबर लाइन बनाते हैं, उसमें इक्वल डिस्टेंस पे नंबर प्लॉट करते हैं। अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जितना है उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का होना चाहिए। ओके, उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का होना चाहिए, यानी जो भी हम नंबर प्लॉट करेंगे उनकी डिस्टेंस हो वो इक्वल होनी चाहिए। कहाँ पे? नंबर लाइन पे। ओके, लुक एट दिस, इफ़ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जितनी है उतनी ही यहाँ से यहाँ तक की है, सो इधर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और इधर नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ये अगर +1 है तो सेम डिस्टेंस पे इधर -1 ही होगा, नंबर सेम वही रहेगा, बस उनके फंक्शंस चेंज हो जाएंगे, ऑपोजिट होंगे। ठीक है, अगर इधर +2 है तो इधर भी यहाँ से यहाँ तक अगर 2 है यानी +2 है, सो सेम डिस्टेंस पे इधर -2 ही होगा। इधर -3 है तो सेम डिस्टेंस पे इधर +3 ही होगा। ओके, इस साइड पॉजिटिव इंटीजर्स और इस साइड नेगेटिव इंटीजर। ज़ीरो क्या होता है? ज़ीरो न्यूट्रल होता है, ना पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। स्टूडेंट्स, कोई फ्रैक्शन लेते हैं, जैसे को डिवाइड करते हैं, किसको? 4 से हम डिवाइड करना है 3 को। 4 से 3 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 0 ज़ा 3.04 7 जा 28 carry a remainder 2 and 0 4 5 ja 20, answer will be 0.75, यानी 0.75. So student, listen to me, be carefully. यहाँ निगेटिव है। ओके, ये क्या है? 0.75 निगेटिव में ही आएगा, -0.75। ओके, सो यहाँ 0 और 1 नहीं, 0 और -1 के बीच में आएगा। ये नंबर कहाँ आएगा? 0 और 1 के बीच में नहीं, बल्कि 0 एंड -1 के बीच में आएगा ना। 0 पॉइंट कुछ हो या 0 पॉइंट समथिंग मीन्स होता है 0 एंड 1 के बीच में। ओके, एंड 1 पॉइंट समथिंग हो तो 1 एंड 2 के बीच में। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, 0 पॉइंट समथिंग हो मीन्स क्या होता है? 0 एंड 1 के बीच में होगा, एंड 1 पॉइंट समथिंग हो तो क्या मतलब होता है? 1 एंड 2 के बीच में बनेगा, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होगा। ओके, सो नेक्स्ट हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, उसके बाद क्या करेंगे? ये क्या आंसर क्या है हमारा है? -0.75, यानी निगेटिव में है, जो कि किसके बीच में होगा? 0 एंड -1 के बीच में होगा। ओके, सो नंबर लाइन ड्रॉ किया, स्टार्टिंग कहाँ से होगी? राइट साइड में 0 से होगी, बाकी इधर के क्या होंगे? सब माइनस में होंगे। एंड फ्रैक्शन का जितना भी डिनोमिनेटर होगा, यहाँ पे क्या है डिनोमिनेटर? 4, तो जितने भी डिनोमिनेटर हैं उतने ही 0 एंड -1 के बीच में उतने ही पार्ट्स होंगे। ओके, जैसे यहाँ पे ये है तो पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट 1 2 3 4, कितने पार्ट होंगे? 4 पार्ट होंगे। किन के बीच में? -1 एंड 0 के बीच में 4 पार्ट्स होंगे। ओके, 1 2 3 4 पार्ट हो गए, किन के बीच में? 0 एंड -1 के बीच में। नाउ यू कैन रिप्रेजेंट हियर -1/4, -2/4 एंड -3/4। ओके, नाउ हमें क्या रिप्रेजेंट करना था यहाँ पे? -3/4, और आपका -3/4 कहाँ पे है? यहाँ पे है, इस पॉइंट पे है, सो हम इजली रिप्रेजेंट कर देंगे। ये क्या है हमारा? -3/4, कहाँ पे है? यहाँ पे। ओके,
सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सब समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कहीं पे भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट में आप बता सकते हो। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। ओके, यानी कोई दो नंबर दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है 2 और 5 के बीच में कितने नंबर है, तो आप बोल सकते हो 2, 3। अगर बोल दिया यहाँ 2 और 5 के बीच में कितने नंबर, तो आप बोल सकते 2 है, ये 3 है, 4 है। कितने नंबर है? 2 नंबर है। 2 और 5 के बीच में कितने नंबर हैं? 2 नंबर्स हैं। कौन कौन? 3 और 4। वैसे ही रैशनल नंबर पे करते हैं तो इनको रैशनल नंबर बना सकते हो 2/1 और 5/1। सो कितने नंबर हुए? 2 नंबर्स हुए, 3 और 4। ओके, सेम एज। सो स्टूडेंट लिसन टू मी, बी केयरफुली। कोई भी दो नंबर के बीच में आप बहुत सारे रैशनल नंबर्स बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है एक या दो ही बनाओ, बहुत सारे रैशनल नंबर्स बना सकते हो। इफ़ वी टेक फर्स्ट रैशनल नंबर इज -3/4 एंड सेकेंड इज 1/3। दो रैशनल नंबर है, -3/4 एंड सेकेंड इज 1/3। ओके, हमें बताना है कि इनके बीच में कितने रैशनल नंबर हैं। तो दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, सो पहले हमें इन्हें सेम करना होगा। इन्हें हम सेम करने के लिए हमें कॉमन मल्टीपल बनाना होगा इनको, यानी दोनों को डिनोमिनेटर सेम करना होगा, जिससे हमें कॉमन मल्टीपल मिलेगा। 3/4 मल्टीप्लाई किससे करेंगे कि इन दोनों का कॉमन मल्टीपल मिलेगा 3। अगर 3 से हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसी 3 से हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, तभी हमें इक्वल मिलेगा। 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, -9/12 एंड दिस वन इज 1/3। अब इन्हें हम कॉमन मल्टीपल हमें इसका भी निकालना है, तो हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। 3 4 जा 12। ओके, 4 से अगर डिनोमिनेटर में कर रहे हैं तो 4 से हम न्यूमरेटर में भी करेंगे। 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा 12। आंसर विल बी दिस एंड दिस। कॉमन मल्टीपल इज 12 एंड 12। दोनों के डिनोमिनेटर अब सेम हो गए। सो अब आप इनके बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर बता सकते हो, जैसे -9/12 एंड लास्ट इज 4/12। इनके बीच जितने भी नंबर हैं सेम, आपका डिनोमिनेटर सेम होगा, बाकी जितने भी नंबर हैं आप लिख सकते हो। -8, -7/12 एंड so on एंड 1/12, 2/12, 3/12 एंड so on। इनके बीच में एंड 0 भी कह सकते हो, 0/12। ये सब इनके मल्टीपल, इनके बीच के ही नंबर्स होंगे, यानी रैशनल नंबर्स ही होंगे। इनके बीच में आप बता सकते हो। ओके, दैट मीन जितने बड़े आप डिनोमिनेटर बनाओगे उतने ही ज़्यादा आपको बीच के नंबर मिलेंगे, रैशनल नंबर उतने ही बीच के आपको मिलेंगे। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के तो सारे कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया है। नाउ आपको जो भी कन्फ्यूज़न होगी आप कमेंट सेक्शन में आप हमसे आस्क कर सकते हो। आई होप you enjoyed this video, so please don't forget to subscribe, like and share. Thank you, students.